Hello students, good morning everyone. So today we are going to discuss in first chapter in economics, which is the story of village Palampur. So let's take a first overview that what is this village. First, this chapter contains in economics. So one thing which comes into your mind that इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाला चैप्टर किस हिसाब से कौन से बारे में हो सकता है, तो ये कैपिटल के बारे में है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है और प्रोडक्शन के बारे में है, फूड प्रोडक्शन के बारे में है, लैंड के बारे में है। जो चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में कुछ दे सकती हैं फाइनेंशियली, उसकी ये एक स्टोरी है जो वो विलेज से है। विलेज का नाम है पालमपुर एंड दिस विलेज इज़ टू बी become a most prominent while explaining this particular economics chapter for you. So the first thing which foremost come an introduction to some basic concept related to the production through a hypothetical village called Palampur, where farming is the mainly activity. So in Palampur, what happened in those time that farming were a main activity over the period of time. The people were doing farming, dairy, manufacturing, transport, and making everything available not in a distant way but near way. Let's make an introduction. Palampur is a fairly connected with well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health centers. The story of Palampur takes us through the different types of production activities in the village. In India, farming is the main product activity across the village. So farming becomes the main activity in this village. Also there is a development. In which field there is a development in roads, development in transportation, electricity, irrigation, schools, health centers. So all things are available in this particular village area, Palampur. Now the organization of the production, the main aim. So what is the main aim for the organization of the production is that the main aim of the production is to produce goods and services. So कुछ प्रोड्यूस करना है गुड्स के रूप में और फिर उन्हें सर्विस, उसकी सर्विस देनी है किसे, पब्लिक को, जनता को, विच रिक्वायर्स 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स के जिसके तहत हमें 4 ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं जो नेसेसरी हैं हमें वो गुड्स को बनाने के लिए. लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स. सो लैंड यूज़ होती है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, वाटर, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, मिनरल्स यानी कि जो मिनरल्स आप डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हो वो, लेबर्स, हमें लेबर्स भी चाहिए क्योंकि काम कौन करेगा, तो लेबर्स काम करते हैं जिनके तहत हम उन्हें वेजेस देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, तो वो हमारा काम करते हैं. फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी. फिजिकल कैपिटल जिस तरह के टूल्स, मशीनरीज, कुछ बिल्डिंग्स है और रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है. और सबसे महत्व की चीज़ जो हमें ज़रूरी होती है वो क्या है, मनी. इन इकोनॉमिक यू हैव टू डील विथ मनी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर थिंग्स विच आर not much important, but in day to day life you can see economics deals with the business only. A variety of raw materials are required during the process of production, such as the yarn used by the weaver and clay used by the potter. Money is also essential during the production and both of them in hand are called working capital. So पैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि लेबर और पैसे मिलके जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल. कि आपके पास पैसा भी है और लेबर्स भी हैं और साधन भी हैं सब कुछ प्रोड्यूस करने के. हैंड्स, समथिंग विच इज़ टू बी नोन एज हैंड्स. तो जब हैंड्स की बात आती है तो हैंड्स का मतलब हाथ नहीं होता है, बट जो मजूर होते हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं उन्हें हैंड्स कहा जाता है.
Okay, the fourth requirement is knowledge and enterprises to be able to put together land. जो चौथी चीज़ आती है इसके अंदर वो क्या होती है, नॉलेज, कि आपको कौन सी फील्ड में गुड्स या प्रोडक्शन करवाना है, उसके तहत आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, और आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, या फिज़िकल कैपिटल चाहिए, या आउटपुट, उस चीज़ों से हमें आउटपुट मिलता है. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइनिंग ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. तो हमें सबसे पहला फैक्टर क्या चाहिए, लैंड चाहिए, कुछ लेबर्स चाहिए, कुछ फिजिकल कैपिटल चाहिए जैसे कि सब साधन, एंड ह्यूमन कैपिटल चाहिए जैसे कि पैसा. सो फार्मिंग कैसी थी, लैंड फिक्स थी. फिक्स का मतलब फॉर पालमपुर, विलेज फार्मिंग इज़ देयर मेन प्रोडक्शन एंड द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, बट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. सो सब कुछ फिक्स था. 70% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Is there a way one can grow more from the same land? कोई ऐसा रास्ता था जिसपे से हम कुछ ज़्यादा पैदावार कर सकें. सो इन द रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न के दौरान खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. तो जो खरीफ पाक होते हैं जिन्हें हम गुजराती में खरीफ पाक कहते हैं, उनमें से कौन सा, बाजरा और ज्वार. फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. तो अक्टूबर दिसंबर में आलू की पैदाश, और विंटर में फार्मर ग्रोज वीट एंड पार्ट ऑफ द लैंड इज डिवोटेड टू शुगर कैन हार्वेस्ट वन एवरी ईयर. सो शुगर कैन की हार्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो 4 चीज़ें, वीट, बाजरा, शुगर कैन, पोटैटो, ज्वार. ओके गाइस, सो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप अ पीस ऑफ लैंड. Another way for high yield is modern farming. In the later 1916, the Green Revolution introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. तो जो भी हाई वैरायटी होती है दानों की, जिसको हम बोते हैं कहाँ पे, लैंड के अंदर हमारा जैसे कि पाक होगा, तो वो दाने की क्वालिटी, वो जो फर्टिलाइज़र होता है और दाने की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई क्वालिटी होती है, जिसके तहत ज़्यादा पैदावार होती है. अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि कोई भी लैंड जो है वो सस्टेनेबल है. So modern farming method have overused the natural resources base due to increased use of chemical fertilizers. The soil loss its fertility. So आजकल केमिकल यूज़ होने के कारण क्या हो गया है कि जो लैंड है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो सब चले जाते हैं, और जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, जिसके तहत जो पाक होना चाहिए उससे हमें पाक तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो पाक की जो पैदावार होती है उसमें बहुत सारे डिजीज़ेस हो जाते हैं. और नेक्स्ट टाइम से जब आप वो लैंड पे फार्मिंग करते हो तो वो लैंड आपको उतना पैदावार नहीं दे पाती है जितना वो नेचुरली दे पाती है, और स्ट्रांगली ग्रेन्स की दे पाती है. वो ग्रेन्स भी ख़राब हो जाते हैं और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते हैं, सब केमिकल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं इसके तहत. ओके फ्रेंड्स, हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. सो लैंड को कैसे डिवाइड किया गया. लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग. इन पालमपुर 1/3 of 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस. तो 450 फैमिलीज़ थी वहाँ पे, 1/3, 1/3 फैमिलीज़ ज़मीन के बिगर की थी. उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी जिससे वो फार्मिंग कर सके.
उस उनमें कैसे लोग शामिल थे। तो दलित सबसे पहला पार्ट आता है। आप सीबीएसई बोर्ड में ये चीज़ नोटिस करोगे कि दलित की बातें बहुत बोली जाती हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इज़ कंटेन फॉर ऑल ओवर द इंडिया, एंड वहाँ पे दलित समाज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए आज भी जो प्रॉब्लम होती हैं वो दलित समाज को ज़्यादा होती हैं, ऐसा हमारे राइटर्स का कहना है। पर इन एक्चुअल वे वी कैन सी दैट दलित समाज and now they are developing very well, and they have a land, they have a cultivation system, they have all kind of machineries which easy to available for them, and that ease which is there they can apply in day to day life even though, and they becomes richer and richer. So it's not compulsory that Dalit Samaj is having a very minor things and not able to connect even their day to day life. They can accommodate, they can farm, they can have a well established home and all machineries and tractors and cars and all. So these things don't contain in your mind that Dalits are the only people. Today's life you can see that those who were belong to very rich family, nowadays they are doing a farming, because there is a lack of resources which makes them and compel them to do so. 240 families cultivate small plots of the land less than 2 hectares in size. And in Palampur, there are 60 families of medium and large farming who cultivate more than 2 hectares of land. So 60 families थी उनके पास. Okay students, then we have a who will provide the labor. तो अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? So the small farmers cultivate their own lands, medium and large farmers hire laborers. So obvious सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप दूसरों की ज़मीन में फार्मिंग करोगे. तो जो लार्ज फार्मर्स होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, वो लोअर फैमिली वाले जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें ज़मीन देते थे और उनसे फार्मिंग करवाते थे, और उसके तहत उन्हें जो भी अनाज देना होता था या फिर जो भी पैसे देने होते थे वेजिस के रूप में, वो उन्हें प्रोवाइड किए जाते थे, जो भी बहुत लेस होते थे, क्योंकि वो अपनी डे टू डे लाइफ की ज़रूरियातें भी उनसे पूरी ना कर सकें, ऐसे होते थे, वरना वो रिच हो जाएंगे और फिर फार्मिंग कौन करेगा, ये मेंटालिटी होती थी उस समय की. हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये चीज़ लेबर लोगों को ज़्यादा लागू पड़ती थी. सो व्हाट इज़ द नीड फॉर फार्मिंग? कैपिटल. सो कैपिटल नीड इन फार्मिंग. सो आज की दुनिया में सब कुछ पैसों के बगैर नहीं होता है. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड मनी एट एवरी जंक्शन, एट एवरी प्लेसेस. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड लाइक अ ब्लड इन योर बॉडी, लाइक अ मनी इन योर लाइफ. So this sentence is to be interrelated with both the aspects. Most small farmers borrows money from a large farmers of the village moneylender or the traders who supply various inputs in the cultivation. The rate of interest on such loans is very high. So some farmers are put a loan to a particular person in individual families, and those families are very much in a poverty, so they can expect such things which in day to day life they can observe and they can make in their life and implement. By that they will provide a loan. So but that loan is having a lot of interest, so that those poor family always add and in debt. So they all the time feel that we are in bankrupt situation, because they never fulfill the demand of the particular person who have given a loan to them, because they are uneducated. And second thing which comes, they don't know what is the ratio they have decided while they were taking that particular loan. So in a whole life they just faced a kind of trouble in which they think that we are unable to perform the good life in our day to day life. In actual way, those people who are having a good land, those who are having a good rich families and having a good money, they lend some amount to them
but in an interest way they charge a big amount, and also they says all the time one sentence that this is a sooth, not a mule. So you have heard this particular sentence in some all movies, right guys? Seven things which is very important: the sale of the surplus farm production. So the wheat the farmer produce from the land is retained in a part for their family consumption, and they sell the surplus wheat. Only the medium and large farmers supply wheat to the market. So होता क्या था, एक तो ज़मीन कम लोगों के पास जो पुअर फैमिलीज थे, तो वो कुछ 10 क्विंटल या 5 क्विंटल अपने घर में रखते थे और बाकी का बचता था वो उनको बेच जाते थे, जिससे वो ऑयल या फिर ग्रेन्स जो दालें थी या फिर मसाला या फिर स्कूल की फ़ीस वो पे कर सके। और जो रिच फैमिली से थे, जो लैंडलॉर्ड्स बड़े थे जिनके पास बहुत सारी लैंड्स हुआ करती थी, वो लोग ही खाली अपनी लैंड्स के में ज़्यादा पैदावार होने से ज़्यादा वीट जो होता था गेहूँ, उसकी बिक्री ज़्यादा करते थे। वो बिक्री के तहत हमें ये समझ में आता था कि ऐसे तो चलता ही रहेगा, इसीलिए वो पुअर्स होते थे वो पुअर रहते थे और जो रिच होते थे वो रिच रहते थे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।